Welcome back, students. Welcome back to our another lecture. In this lecture, we are going to discuss the remaining plot, that is Edey-Hofstee plot, Hens plot, and Easton Cornish Bowden plot. Okay, in previous lecture we have discussed about the Lineweaver-Burke plot. So the main designation or the main aim to design this four plot is the modified form of the Michaelis-Menten equation or modified form of the Michaelis-Menten graph was unable to determine the actual value of the Vmax. Okay, why? Because the graph of this Michaelis-Menten was somewhat hyperbolic, so there was no any limitation to that hyperbolic curve, or we can say hyperbolic graph. So because of that, it was unable to predict the actual value of the Vmax. So it was necessary to modify that curve form of the graph into the straight line plot. So this four scientists did the same work to modify that hyperbolic curve into the straight line graph, so that we can determine the, or we can predict the exact value of the Vmax and Km. So in previous video we discussed about the Lineweaver-Burke plot. There was some limitations of the Lineweaver-Burke plot. So the next scientist, known as the Edey-Hofstee plot, he discovered the next plot related to Lineweaver-Burke equation. Now what was the limitation of the Lineweaver-Burke plot? Lineweaver-Burke plot, the limitation was extrapolation across 1 upon v0 axis to determine the value of x-intercept, that is minus 1 upon km, in Lineweaver and Burke plot sometimes reaches the edge of the graph paper, possibly resulting in the graph to be redrawn. Means what? Let me show you the plot of Lineweaver-Burke plot so that हम और easily understand कर पाएंगे. तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये 1 अपॉन v0 जो है विच इज ऑन दी y एक्सिस. ओके, नाउ हमने क्या किया था, x इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई किया था, x इंटरसेप्ट फाइंड किया था. तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें मिली थी माइनस 1 अपॉन km विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन. ओके, सो हम ये नहीं जानते कि इससे हम कहाँ तक एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, और अगर हम इसे एक्स्ट्रापोलेट करते इट मे रीच टू द एज ऑफ द ग्राफ. सो देयर इज नो एनी फाइनाइट end of this, we can say end of this line to predict the value of the x intercept. Okay, so this limitation was there in the Lineweaver-Burke plot. That limitation was overcome by the next plot, that is the Edey-Hofstee plot. ओके, तो यही है, इट वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट जॉर्ज ईडी एंड हॉफस्टी. सो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ दिस Edey-Hofstee प्लॉट, वो मैं आपको बताती हूँ. द डेरिवेशन, और वी कैन से द Edey-Hofstee प्लॉट, इट स्टार्ट फ्रॉम द Lineweaver-Burke equation. Okay, so Lineweaver-Burke equation was 1 upon v0 is equal to km upon vmax into 1 upon concentration of s plus 1 upon vmax. तो ये है आपका Lineweaver-Burke plot, या फिर आप इसे कहेंगे Lineweaver-Burke plot equation. Okay, so what you have to do, you have to multiply both the sides, this right side as well as left side, by the value v0 into vmax. तो हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ईच इक्वेशन के आगे हमने मल्टीप्लाई किया है बाय v0 इंटू वी मैक्स. लाइक टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, and the remaining value which you will get is Vmax is equal to Km upon concentration of S into V0 plus V0. Okay, for your convenience you can take the screenshot of this pic. Next is the, अब हमने what you have to do, you have to rearrange this equation. Okay, ये equation आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है. तो आप जब इसे रीअरेंज करते तब आपको मिलता है v0 इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस v0 इंटू के एम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ s. ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. ओके, तो हम इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे. तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है आपका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. नाउ दिस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमने Lineweaver-Burke में भी देखा. तो हमारा इक्वेशन कैसे तैयार हो जाता है, ये इक्वेशन इट विल बिकम समवॉट लाइक दिस, v0 इज इक्वल टू के एम, दिस km
माइनस वैल्यू है तो ये माइनस यहाँ पर एज इट इज रहेगा. ओके, माइनस के एम इंटू V0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S प्लस V मैक्स. वी हैव नॉट चेंज द साइन. हमने ये इक्वेशन ऐसे ही उठाया है, सिर्फ इस फॉर्म में हमने रीअरेंज किया है. सो हमें फाइनल इक्वेशन मिलता है इन द माइनस फॉर्म, दैट इज V0 इज इक्वल टू माइनस के एम इंटू V0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S प्लस V मैक्स. तो ये आपको मिलता है ईडी हॉफस्ट्री प्लॉट का इक्वेशन. नाउ बाय द हेल्प ऑफ दिस प्लॉट, अभी यहाँ पर y क्या है आपका, y है V0, m आपका इंटरसेप्ट क्या है, आपका इंटरसेप्ट है V मैक्स, एंड दिस m इज द m स्टैंड्स फॉर दिस स्लोप एंड x इज दिस V0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S वैल्यू. x वेरिएबल ये चेंज हो सकता है. नाउ लेट्स प्लॉट द ग्राफ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. तो आपका प्लॉट कैसे आएगा, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ. तो ये है आपकी y एक्सिस, ये है आपकी x एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पर y एक्सिस में आपका क्या है, मैं एक बार इक्वेशन लिख लेती हूँ सो दैट इट विल बी कन्वीनियंट. इक्वेशन इज लाइक दिस, V0 इज इक्वल टू माइनस के एम इंटू V0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S प्लस V मैक्स. ओके, ये आपका है इक्वेशन. तो इस इक्वेशन के हिसाब से कैसे किस तरीके से अरेंज किया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये अरेंज किया गया है. ओके, सो लेट्स ड्रॉ दी ग्राफ. ऑन y एक्सिस वी विल पुट अप V0 दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी ऑन y एक्सिस, एंड ऑन x एक्सिस हम क्या डालेंगे, x एक्सिस पे हम डालेंगे अपना V0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस वैल्यू है, हमने चेंज नहीं किया है. अब आप कहेंगे इस इक्वेशन में तो माइनस वैल्यू नहीं है, हमने सिर्फ इक्वेशन रीअरेंज किया है उसके अकॉर्डिंग, हमने कोई वैल्यूज या कोई भी साइन चेंज की नहीं है. ओके, बिकॉज इस हिसाब से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. यहाँ पर माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, द वैल्यू इज इन द माइनस. सो ग्राफ हमारा कैसा होगा, डाउनवर्ड साइड में होगा. स्लोप हमारा कैसा होगा, इट विल बी इन द डिक्रीजिंग फॉर्म. ओके, अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ तो हमारा स्लोप कुछ इस तरीके से होगा, इट विल बी इन द डिक्रीजिंग फॉर्म because here minus value is there. Minus value itself indicate that slope will go in the downward form. तो हमारा यहाँ पर slope क्या होगा, the slope will be minus km. okay, ये आपका होगा slope and this value will be your v max. okay, maximum velocity, और ये आपकी वैल्यू होगी के ओके, ये आपकी वैल्यू होगी V मैक्स अपॉन के एम. सो कुछ इस तरीके से आपका ओवरऑल ग्राफ होगा, आपका ओवरऑल प्लॉट होगा. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया वी हैव ट्राइड टू प्लॉट द ग्राफ दैट इज नोन एज द वी कैन से लाइन वीवर बर्ग प्लॉट से ही हमने प्लॉट किया है अपना ईडी हॉफस्ट्री प्लॉट. ओके, सो दिस इस इन सभी प्लॉट्स का बस एक ही एम है, दैट इज वी हैव टू जस्ट ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड कंपेयर दिस विद दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो उस हिसाब से आपका पर्टिकुलरली स्लोप आता है. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द ईडी हॉफस्ट्री प्लॉट. V मैक्स अपॉन के एम यहाँ पर है, माइनस के एम यहाँ पर है, दैट इज द स्लोप एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द V मैक्स. ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट इक्वेशन. द नेक्स्ट इक्वेशन इज, और वी कैन से द नेक्स्ट प्लॉट इज हेंस प्लॉट. ठीक है, ये है आपका हेंस प्लॉट. नाउ हेंस प्लॉट ऑल्सो इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द लाइन वीवर बर्ग प्लॉट. ठीक है, ये जो ग्राफ है इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द लाइन वीवर बर्ग प्लॉट एज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लाइन वीवर बर्ग इक्वेशन. नाउ this is the equation of the line weaver burg plot.
तो इस इक्वेशन में अब आपको क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस अबव इक्वेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस ऑन बोथ द साइड्स। तो आप ये कैसे याद रखेंगे, देखिए बहुत इजी है। यहाँ पर मैंने एस हाईलाइट किया है, एस हाईलाइट इसीलिए किया है क्योंकि जस्ट आपको कोई कंफ्यूज ना हो कि कौन सी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है, या आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो हेंस एस दिस इंडिकेट्स दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस। ओके, और ईडी हॉफस्टी प्लॉट में आपने क्या किया है, यू हैव मल्टीप्लाइड बाय वी जीरो इंटू वी मैक्स वैल्यू, और यहाँ पर एस है तो वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपको दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करनी है बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस। सो वी गेट 1 अपॉन वी जीरो इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस इज इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स into 1 upon concentration of S into concentration of S plus 1 upon V max into concentration of S। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, like terms will get cancelled and finally हमें क्या मिलता है, concentration of S upon V0 is equal to Km upon V max। I hope you are with me। Km upon V max plus concentration of S upon V max। ठीक है, ये हमें मिलता है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट रीअरेंज द टर्म। हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। आफ्टर रीअरेंजमेंट हमें मिलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन वी जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन वी मैक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस प्लस के एम अपॉन वी मैक्स। हमने सिर्फ टर्म्स क्या किए हैं, वी हैव जस्ट रीअरेंज्ड आवर टर्म। ओके, आई थिंक अब ये इक्वेशन बन चुका है इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, somewhat नहीं, it is similar to that straight line equation। Now we will plot the graph and plot this equation, that is hence equation हम plot करेंगे तो कुछ प्लॉट इस तरीके से आएगा। ये आपकी y एक्सिस, ये है आपकी x एक्सिस। तो x में हम डाल देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ s। तो ये प्लॉट हम इस तरीके से भी एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ s, और आपके y एक्सिस में आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ s अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और एंड नाउ वी विल प्लॉट द स्लोप, और हम एक स्लोप प्लॉट करेंगे तो हमारा स्लोप आ जाएगा 1/v मैक्स। ठीक है, 1/v मैक्स आपका स्लोप आया, एंड यहाँ जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट इट इज के एम अपॉन वी मैक्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी, इट्स वेरी सिंपल। हेंस प्लॉट बहुत ही सिंपल है, जो इस इक्वेशन में है वही हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। तो दिस इज अबाउट दी हेंस प्लॉट, दैट इज प्लॉट बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन वी वर्सेस एस। यहाँ पर सब एस एस है, मल्टीप्लाई भी एस से करना है, ग्राफ भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन इनिशियल वेलोसिटी है, वाई एस एस, बिकॉज आप ये ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, हेंस का जो लास्ट वर्ड एस है। So here completely S is there, just a trick to keep in mind so that आपको कोई चार प्लॉट्स के बीच में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट प्लॉट है, दैट लास्ट प्लॉट इज द आइसेंथल कॉर्निश बाउडेन प्लॉट। इट वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1974। ठीक है, 1974 में ये प्लॉट डिस्कवर्ड किया गया है। सो इस प्लॉट में इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ना वॉट यहाँ पर माइकलिस मेंटेन इक्वेशन दिया है, अब यहाँ पर क्या कहा है, इनवर्स। तो वी विल इनवर्स आवर माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। 1 अपॉन वी जीरो इज इक्वल टू के एम प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन वी मैक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस। ठीक है, ये हमने सिर्फ क्या किया है, इनवर्स किया है या रेसिप्रोकल किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी, मतलब क्या होगा, वी मैक्स, दिस टर्म विल कम हियर, वी मैक्स अपॉन वी जीरो इज इक्वल टू के एम प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन एस। ठीक है, सिर्फ क्या हुआ है, वी मैक्स ये यहाँ पर आ गया है, तो वी मैक्स अपॉन वी जीरो इज इक्वल टू के एम प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस। नाउ व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट इज वी मैक्स अपॉन वी जीरो
इज इक्वल टू, हम सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेपरेटली मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलता है के एम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस। यहाँ पर हमने क्या किया है, सेपरेटली मल्टीप्लाई नहीं किया है, बट आपने एस टर्म को सेपरेट रीअरेंज किया, ओके। सेपरेट रीअरेंज करने के बाद यहाँ पर एस एस क्या होते हैं, इट गेट कैंसल एंड द वैल्यू यू गेट इज वी मैक्स इज इक्वल टू वी ज़ीरो, सॉरी वी मैक्स अपॉन वी ज़ीरो के एम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस प्लस 1, ओके। 1 आप जब कट करते हो तो वो 1 होता है, ये मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा। तो हमें फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलता है, वी मैक्स अपॉन वी ज़ीरो इज इक्वल टू के एम बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस प्लस 1, ओके। दिस इज द इक्वेशन। ये बाकी इक्वेशन से ज़रा सा डिफरेंट है और इसका ये इक्वेशन ज़रा डिफरेंट है, इसीलिए इसका प्लॉट भी थोड़ा सा अलग है, ओके। तो अब हम इसका प्लॉट देखते हैं। इक्वेशन बहुत ही सिंपल डिराइव किया है, सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट वी हैव टेकन द वी मैक्स एंड देन वी हैव गॉट दिस वैल्यू, हमने सेपरेट किया है इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस को, एस कट करके द 1 हैज बीन केम। नाउ इफ वी विल सी द प्लॉट फॉर दिस डेरिवेशन, देन द प्लॉट इज समवॉट इन अ इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। इसका जो प्लॉट आया है वो प्लॉट है इंटरसेप्शन फॉर्म में। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर वी मैक्स और के एम, ये आपको याद रखना है। वाई एक्सिस में प्लॉट किया गया है वी मैक्स, एक्स एक्सिस में प्लॉट किया गया है के एम। नाउ व्हाट यहाँ पर क्या दिया गया है, एट कॉन्स्टेंट वी ज़ीरो एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस। एक बार मैं आपको यही इक्वेशन यहाँ लिख कर देती हूँ, वी मैक्स अपॉन वी ज़ीरो इज इक्वल टू के एम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस प्लस 1। सो दिस इज द इक्वेशन जो हमने डिराइव किया है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, सी एट कॉन्स्टेंट वी ज़ीरो, जस्ट लिसन इट प्रॉपरली, एट कॉन्स्टेंट वी ज़ीरो and concentration of substrate, a plot of Vm, okay, a plot of Vm, that is Vmax, okay, Vm and Vmax are the same. So a plot of, we can say, Vmax against Km, Vmax against Km is obtained in the लीनियर फॉर्म, ओके। ये ग्राफ आपको लीनियर फॉर्म में ऑब्टेन होता है, कब, जब आप ये दो वैल्यूज कांस्टेंट रखते हैं तब। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके। सेकेंड पॉइंट इज देयर, दोनों एक साथ तो कांस्टेंट नहीं रखते आएंगे, मैथमेटिकली वो करेक्ट भी नहीं होगा। तो अगर मैथमेटिकली इसे लिखने, जो मैंने इक्वेशन आपको अभी, जो सेंटेंस मैंने आपको कहा कि एट कॉन्स्टेंट वी ज़ीरो एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अ प्लॉट ऑफ वी एम अगेंस्ट के एम इज ऑब्टेन्ड इन द लीनियर फॉर्म, ओके। नाउ इफ वी सी, अगर हम के एम ज़ीरो रखते हैं, ओके, अगर हम के एम ज़ीरो रखते हैं, व्हेन के एम इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वी मैक्स क्या आएगा, वी मैक्स, इफ के एम इज इक्वल टू ज़ीरो देन वी मैक्स एंड वी मैक्स इज इक्वल टू वी ज़ीरो, ओके। अगर के एम ज़ीरो होगा तो वी मैक्स वी ज़ीरो में होगा। मतलब क्या है इसका, हम के एम की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो वी मैक्स जिस एक्सिस में है उसी एक्सिस में क्या होगा, देयर विल बी वी ज़ीरो, ओके। ऑन द सेम एक्सिस आपका वी ज़ीरो होगा। सेकेंड कंडीशन ऐसी रखी जाती है, अगर वी मैक्स ज़ीरो होगा, ओके, इफ वी मैक्स इज ज़ीरो देन एंड के एम इज इक्वल टू माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस। मतलब क्या है, जिस एक्सिस में आपका के एम होता है उसी एक्सिस में आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस होगा। गेटिंग माई पॉइंट, यही है इसका मतलब। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, सी इफ के एम इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स के एम यहाँ पर ज़ीरो है, देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ के एम, एंड वी मैक्स इज इक्वल टू वी ज़ीरो। मतलब जिस लाइन में, जिस एक्सिस में आपका वी मैक्स है उसी एक्सिस में, यानी कि डाउन साइड डेफिनेटली मैक्सिमम के ऊपर तो नहीं होगा, इट विल बी एट बिलो ऑफ वी मैक्स, तो उसी वी मैक्स की एक्सिस में ही आपका वी ज़ीरो प्लॉट होगा एट एनी पॉइंट, ओके। एंड सेकेंड कंडीशन इज लाइक दैट ऑपोजिट,
वी मैक्स इज इक्वल टू 0 एंड के एम इज इक्वल टू -s। मतलब अगर हम वी मैक्स 0 रखते हैं तब हम के एम जिस एक्सिस पे होगा उसी एक्सिस पे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लॉट करेंगे एट एनी पॉइंट। ओके, सो दिस इज द कंडीशन। सेकेंड पॉइंट आपको समझा। नाउ वी विल गो टू दी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज लाइक दैट experiment value of concentration of S and concentration of V0 pairs can be used to plot lines by considering V0 point on y axis। now देखिए यहाँ पर V0 दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लाइंस दिखाई गई है, बहुत से लाइन इसीलिए दिखाई गए हैं देयर इज अ इंटरसेप्ट पॉइंट। अब ये जो यहाँ पर एक इंटरसेप्ट पॉइंट है, कुछ कुछ प्लॉट्स में एरर ग्राफ प्लॉट किए गए, मतलब दैट प्लॉट इज राइट बट इंटरसेप्ट दो जगह दिखाया गया है, तो दैट इज द लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्लॉट, क्योंकि ये प्लॉट आपको प्रॉपर इंटरसेप्ट पॉइंट देता नहीं है। ओके, एक इसका प्रॉपर इंटरसेप्ट पॉइंट आपको मिलता नहीं, इसीलिए इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द वी मैक्स एंड के एम वैल्यू। इस पे भी इसी प्लॉट के जरिए सॉल्यूशन दिया गया है। ये सॉल्यूशन ऐसा है कि आप इंटरसेप्ट जो मिलते हैं, इतने सारे लाइंस जो मिलते हैं, यू कैच द मीडियन मीन्स व्हाट, सी ये आपको इतने 1 2 3 4 वैल्यूज आपको मिलती है V0 की। ओके, 4 वैल्यूज आपको मिली V0 की एट द पॉइंट वेयर द इंटरसेप्शन इज देयर, फ्रॉम दैट यू हैव टू ड्रॉ द लाइन एंड सजेस्ट इट एज द KM। ओके, नेम्ड इट एज द KM। तो जो KM की वैल्यू मिलती है आपको वी मैक्स और KM कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ द मीडियन, means to by catching the middle value and then dividing it according to that number। तो इस तरीके से आपको exact value मिलती है by calculating the median। okay, so that is the overall about this experiment, means experiment values of this concentration of S and V0 means ये concentration of S it may be n number, 1 से n number दिखाया गया है। तो जो वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस की और V0, इट पेयर्स कैन बी यूज टू प्लॉट लाइन्स बाय कंसिडरिंग द V0 पॉइंट ऑन द V max एक्सिस एंड -S पॉइंट ऑन द KM एक्सिस। तो द पॉइंट्स, दिस टू पॉइंट्स सो ऑब्टेन आर जॉइंड एंड द लाइन इज एक्स्ट्रापोलेटेड। ओके, लाइन क्या की जाती है, एक्स्ट्रापोलेट की जाती है। सो मेनी सच लाइन्स फॉर कॉन्स्टेंट एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन आर ऑब्टेन a vary substrate and V0 pairs। So the value of the Km and the Vmax are the points of the intersection। Okay, the value of the, मैंने क्या कहा है, the value of the Km और the Vmax ये क्या है, these are the points of the intersection। and आपको exactly, जैसे मैंने आपको पहले बताया, exactly आपको values नहीं मिल, आपको नहीं पता ना कि कौन सी लाइन का कौन सा V0 है, कौन सी लाइन का कौन सा Km है, तो आप ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं एंड देन फाइनली टू डिटरमाइन द V0 एंड और Vmax एंड KM वैल्यूज यू यूज द मीडियन टेक्निक। ओके, सो दैट यू कैन गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द Vmax एंड द KM। तो यहाँ पर एग्जैक्टली Vmax आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, व्हेन हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये मैक्सिमम मैं बता दूं कि व्हेन दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हेन हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर आप यहाँ पर दिखाया गया है, कुछ कुछ जगह पर यहाँ पर दिखाया गया है, फ्रॉम द point of the intersection to the y-axis, the value at which this horizontal line crosses the y-axis is equal to the Vmax। मतलब अगर यहाँ पर point of intersection है, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन यू विल प्लॉट द डाउन साइड लाइन, दैट इज द Vmax। ओके, ये वाला आपका क्या होगा, Vmax। ऑपोजिट इज द KM। KM कैसे होगा, व्हेन अ वर्टिकल लाइन इज ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन Vmax, वर्टिकल लाइन KM। बट वो एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्टली आपको मीडियन से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर एक लाइन होती तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स हैं, तो नंबर ऑफ लाइन्स आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ओके, सो आपको एक साथ इन सब का Vmax और KM कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक कंडीशन रखी गई है। तो इस कंडीशन के ज़रिए और विद द हेल्प ऑफ द मीडियन यू कैन इंटरप्ट दैट और you can finally conclude the exact value of the Vmax and KM। Okay, so this is all about this 4 plot
I hope you might have understood. So yes, this is about the four plots which we have discussed. Thank you.